السلام علیکم، آج 8 بجے میں خوش آمدید، میں ہوں مطاہر جلیس خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں ملک میں کورونا پھر سر اٹھانے لگا ہے۔ کورونا سے مزید 4 افراد جاں بحق ہو گئے، مثبت کیسز کی شرح 4.47% تک پہنچ گئی ہے۔ NIH کے مطابق 24 گھنٹے میں کورونا کے 18,305 ٹیسٹ کیے گئے، 818 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، 126 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ بات کریں کچھ موسم کی تو کراچی والے ہو جائیں تیار، برسات ہوگی لگاتار۔ محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا، مانسون ہوائیں آج جنوب مشرقی سندھ اور بلوچستان میں داخل ہوں گی۔ کراچی میں شام کو موسلا دھار بارش ہوگی۔ ٹھٹا، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو ولیار، دادو اور جامشورو سمیت اندرون سندھ میں تیز بارش کا امکان ہے۔ کوئٹہ، زوب، دالبندین، نوکنڈی، نوشکی، مستونگ اور قلات میں بھی موسلا دھار بارش ہوگی۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ موسم کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو کریں، محکمہ موسمیات کی جانب سے الرٹ جاری کیا جا چکا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ مانسون ہوائیں آج سے جنوب مشرقی سندھ اور بلوچستان میں داخل ہوں گی، جبکہ کراچی میں شام کو موسلا دھار بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹھٹا، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو ولیار، دادو اور جامشورو سمیت اندرون سندھ میں تیز بارش کا امکان ہے۔ کوئٹہ، زوب، دالبندی، نوکنڈی، نوشکی، مستونگ اور قلات میں بھی موسلا دھار بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس بات کا بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں، اس حوالے سے اقدامات کر لیے جائیں۔ کراچی میں بھی بارش آج شام سے ہوگی۔ کراچی میں محکمہ موسمیات نے آج سے بارش کی پیشگوئی کر رکھی ہے، اور اس وقت موسم کی کیا صورتحال ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز انوشا جعفری سے۔ انوشا، اپڈیٹ کیجیے گا کراچی کا اس وقت موسم کیسا دکھائی دے رہا ہے، حالانکہ بارش کی جو پیشگوئی وہ آج شام سے ہے۔ انوشا سے رابطہ کر کے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو کراچی کا موسم ہے یقین طور پہ کراچی کے جو باسی ہیں وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب موسلا دھار بارش ہوگی اور ہم اس بارش کو انجوائے کریں گے، کیونکہ اب تقریباً پاکستان کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر بارش شروع ہو چکی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آج شام سے کراچی میں بارش ہوگی۔ گرمی کا زور تو ٹوٹ چکا ہے، گزشتہ روز سے جو کچھ اچھی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، جس کے بعد کراچی کے موسم میں کچھ کمی ہوئی ہے، کچھ گرمی میں کمی ہوئی ہے، اور آج بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ انوشا جعفری سے مزید جانتے ہیں۔ انوشا، اپڈیٹ کیجیے گا کراچی کا موسم آج کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ بالکل مطاہر، محکمہ موسمیات کی جانب سے آج سے جو ہے وہ کراچی میں مانسون کے پہلے اسپیل کی بارشوں کی پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ صبح سے ہی جو ہے وہ کالے بادل جو ہے وہ کراچی کے اندر چھائے ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سندھ بھر میں جو ہے وہ گرج چمک کے ساتھ گرد آلود ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے۔ آج رات سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سسٹم کراچی میں داخل ہوگا، جو کہ کافی تیز بارش جو ہے وہ برسائے گا۔ صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کالے بادلوں کا راج ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے، تو صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن ایسی پیدا ہو چکی ہے کہ شام تک ممکن ہے کہ یہ بادل برس جائیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ رات میں جو ہے وہ گرد آلود ہوائیں چلنا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی۔ کل جو ہے وہ آج سے زیادہ تیز بارش جو ہے وہ متوقع ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ ڈاکٹر سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ اس بارش کے پیش نظر جو ہے وہ اربن فلڈنگ کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے، جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو لوز انفراسٹرکچر ہے اس کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو اگر بات نالوں کی صفائی کی تو نالوں کی صفائی جس طرح کی گئی تھی اس طریقے سے ٹھیک ہے، بہت شکریہ انوشا جعفری، تفصیلات سے آپ نے آگاہ کیا۔ کراچی میں آج سے بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، شہری تیاری کر لیں۔ پشاور میں موسم خوشگوار ہو گیا اور آسمان پر بادل چھا گئے، گرمی کا زور ٹوٹنے سے شہری بھی خوش دکھائی دیتے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز عزم رحمان سے۔ عزم رحمان، اپڈیٹ کیجیے گا کیسا موسم ہے وہاں کا؟ جی بالکل، پشاور میں موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے، گرمی کا جو زور ہے وہ ٹوٹ گیا، آسمان پر کالے جو بادل ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں، اور ہم یہی دیکھیں کہ تھوڑی تھوڑی جو ہے ہلکی ہلکی ہوا بھی جو ہے چل رہی ہے، جس کی وجہ سے موسم جو ہے کافی زیادہ خوشگوار ہو گیا، گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ 3-4 دن پہلے تک کافی زیادہ یہاں پہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا تھا، شہری جو ہے وہ سخت پریشان ہو گئے تھے، تپتی دھوپ پڑ رہی تھی، جو درجہ حرارت تھا وہ میکسیمم 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا تھا، لیکن یہ جو بادل آئے ہیں اس کی وجہ سے جو درجہ حرارت ہے وہ بھی نیچے گر آیا ہے۔
है, मौसम भी जो है खुशगवार हो गया, धूप भी जो है इस वक्त हमें दिखाई नहीं दे रही, सूरज आसमान में दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बादल जो है छाए हुए। महकमे मौसमियात के मुताबिक जो है अगले 24 घंटे में पेशावर समेत ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा में जो है बारिश की पेशन गोई भी की गई है कि बारिश भी जो है वो होगी। इससे हवाले से PDM ने जो है अलर्ट भी जारी किया और तमाम जो जिले इंतजामिया है वहाँ पे तमाम को जो है अलर्ट जारी किया गया और यही कहा गया कि अगले 24 घंटे में बारिश की पेशन गोई की गई है। जी, और ये आपको बताएं कि ईरान के जनूबी सूबे हरमुज़गान में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। इमारत लरज़ उठी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले से 3 अफराद हलाक और 22 जख्मी हो गए। ज़लज़ले के झटके मुत्तहिदा अरब अमारात और शारजा में भी महसूस किए गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज हरमुज़गान में बंदर खमीर था। ज़लज़ला 10 किलोमीटर की गहराई में आया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज सुमा बट से। उमा बट अपडेट कीजिएगा, कहां तक पहुंचे किराए? जी बिल्कुल, किरायों ने तो अपनी तमाम जो हद थी वो ख़त्म कर दी है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं क्योंकि अखराजात जो हैं वो बढ़ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का अगर इजाफे में जो देखें उसके आफ्टर शॉक्स जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर दूसरे दिन किसी न किसी चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ रही है और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से अब किराए जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। कुछ रोज़ कबल हम लोगों ने देखा था कि किराए जैसे ही पेट्रोल बढ़ा था उसके वक्त की कीमत जो है वो बढ़ी थी, उसके बाद किराए जो है वो 20 रुपये से 40 रुपये तक पहुंचे थे और अब यही कीमत जो है वो 40 रुपये से 60 रुपये तक पहुंच रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन अभी हम लोग ये ज़रूर आपको बता दें कि लाहौर में बहुत सी बसेस ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट ऑन्ड हैं और उसमें जो है स्पीडो भी है, मेट्रो भी है और इसके अलावा जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उनके जो किराए हैं अभी तक उसमें इजाफा नहीं हुआ। लेकिन जितनी भी प्राइवेट कंपनीज उनकी तरफ से तमाम किराए जो है जितनी भी वैन्स हैं उनको बढ़ा दिया गया है क्योंकि उनकी तरफ से बार बार कहा यह जा रहा है एक तो पेट्रोल जो है वो 249 यानी कि एक तरह का 250 रुपये तक पहुंच चुका हुआ है और उसी तरह डीजल की कीमत जो है वो भी 277 रुपये तक पहुंच चुकी हुई है। काफ़ी मुश्किलात होती जा रही हैं उनके लिए अपना गुजारा करना। सो दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ तो जो वैन्स और बसेस चलाने वाले हैं उनकी मुश्किलात हैं, वो एक तरफ बार बार सुना रहे हैं कि उनके लिए मुश्किल हो रहा है और दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि ईद के दौरान उनकी 40% जो बसेस हैं वो चलना बंद हो चुकी हुई हैं। सिर्फ ईद के दौरान वो ये बसेस चलाएंगे, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये धमकी भी दे दी है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो वो ईद के बाद जो है वो अपनी तमाम बसेस जो है वो चलाना बंद भी कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं अवाम बेहद ज़्यादा परेशान होती जा रही है। उनका बुरा हाल हो गया है कि हर तरफ से वही पिस रहे हैं, चीज़ें हर कोई बढ़ा रहा है, कीमतें हर कोई बढ़ा रहा है, लेकिन उनके लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है अभी तक नहीं आ रहा है। अभी हम लोग वैन्स की जो कीमत है, वैन्स की किराए की जो कीमत है वो 40 से 60 रुपए तक पहुंची है और इसी तरह दीगर जो रिक्शे हैं उन्होंने भी अपने किराए जो है वो बढ़ा दिए हुए हैं। हर कीमत जो है हर शख्स जो है हर ट्रांसपोर्ट ने अपना किराया बढ़ा दिया गया है। महंगाई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब महंगाई होगी तो किराए बढ़ाए जाएंगे और ये आवाम पे इसका असर पड़ेगा। होमोबर्ट, बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट किया। लाहौर में सीनियर सहाफी और तज्जियाकार अयाज अमीर को नामालूम अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। अयाज अमीर एक प्रोग्राम के बाद अपने घर जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने तशद्दुद किया, मोबाइल और पर्स लेकर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा ड्राइवर मोहम्मद इकबाल की मुद्दत में थाना किला गुज्जर सिंह में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक 6 मुल्जिमान ने गाड़ी सामने खड़ी करके रास्ता रोका। मुल्जिमान ने अयाज अमीर पर तशद्दुद किया और पर्स, मोबाइल छीनकर फरार हो गए। मुकदमे में मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया है। अयाज अमीर कहते हैं हमलावर कौन थे नहीं मालूम, एक ने करोड़ा मास्क पहना हुआ था। तशद्दुद करने वाले तजुर्बेकार लोग थे, जिस तरह से ज़दोकोब कर रहे थे लगता था कि इन्हें मालूम है कि इन्हें कितना करना है। उन्होंने कमीज भी दानिस्ता तौर पर फाड़ी और कार्रवाई के बाद गायब हो गए। जब एक आदमी सडनली आ गया, ड्राइवर की तरफ आ गया और ड्राइवर को ज़दको तले लाओ इस तरीके से, और 2 आगे मेरी तरफ और वो असॉल्ट करने लगे। हम अपने इनोसेंस में विंडोज वगैरह हमने नीचे की हुई थी, तो फिर नीचे भी खींचा, वहां पे भी ज़दको किया, तो एक असॉल्ट हुई और लगते वो आदमी थे क्या कहते हैं
तजर्बाकार लगते थे। जो एक ड्राइवर के पास आया था उसने शलवार कमीज पहनी हुई थी, मास्क उसका था, बाकियों के मास्क नहीं थे। जो मेरी तरफ आए, जो बाकी गाड़ी में और भी थे लोग, अब वो मैं नहीं देख सका, वो स्पेकुलेट मैं नहीं करना चाहता। अब मैं अगर कहूं कि नहीं जी उस मैंने कल वो किया तो आज ये हो गया, अगर ऐसे कनेक्शन है तो इससे ज्यादा बेवकूफी कोई का मुजाहरा कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक वो मैंने वो बंद किया, मेरी शर्ट फाड़ी गई। एक वो शर्ट वो फाड़ी जाती है, आप कोई लड़ाई कर रहे हो तो पड़े, ये दानिस्ता तौर पे ऐसे करके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए वज़ीर आला पंजाब को वाक़े की तहकीकात कराने की हिदायत की और कहा कि मुल्ज़िमान को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाए, सहाफ़त और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने अयाज अमीर से हमदर्दी का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है, कहा कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। उधर PTI चेयरमैन इमरान खान ने भी अयाज अमीर पर हमले की मज़म्मत की, कहा पाकिस्तान एक बदतरीन किस्म के फाशिज्म की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा, तब तक हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खुशी है किसी हद तक सियासी ग्रुप्स में इत्तेफाक हुआ, ये दोनों फरीकैन की कामयाबी है। बाबर अवान ने अदालत को आगाह किया कि इमरान खान ने हमजा शहबाज को दोबारा इंतखाब तक वज़ीर आला तस्लीम कर लिया। मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन तक हमजा बतौर वज़ीर आला कबूल है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा मैदान में मुकाबला करें, जो बेहतर होगा वो जीत जाएगा। पंजाब की सियासत में बहरानी कैफियत का खात्मा हो गया। वजीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ PTI की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। रहनुमा PTI बाबर अवान ने बताया कि इमरान खान ने हमजा शहबाज को दोबारा इंतखाब तक वजीर आला पंजाब तस्लीम कर लिया है। ज़िमनी इलेक्शन और मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन तक हमजा बतौर वजीर आला कबूल हैं। आफ लीग के वकील ने कहा ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा 22 जुलाई तक हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खुशी है किसी हद तक सियासी ग्रुप्स में इत्तफाक हुआ, ये दोनों जानिब की कामयाबी है। हुक्म दिया कि वजीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा, तब तक हमजा शहबाज वजीर आला रहेंगे। हमजा के लिए कायम मकाम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमजा शहबाज ने भी 22 जुलाई की तारीख कबूल कर ली। बाबर अवान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से तहफ्फुज़ात मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि पीठ पीछे तनकीद करने का कल्चर अच्छा नहीं। आप 3 माह से लड़ रहे हैं, अब देखें मसला हल हो गया। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा मैदान में मुकाबला करें, जो बेहतर होगा वो जीत जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि वजीर आला साहब क्या धांधली या हरासा करने का इरादा है। इस पर हमजा शहबाज ने जवाब दिया कि सियासी वर्कर हूँ, जेलें काटी हैं, साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। हमजा शहबाज कहते हैं इस फैसले से बहरानी कैफियत का खात्मा होगा। पंजाब कई माह तक आईनी बहरान का शिकार रहा। 17 जुलाई को जमहूरी अंदाज में अवाम जिसको चाहे वोट देंगे, अवाम जो फैसला करेंगे वो दिल से कबूल करूंगा। काबीना न होने के बावजूद हमने गंदुम बहरान को खत्म किया और आटा सस्ता किया। सूबे पंजाब आईनी बहरान दर आईनी बहरान का शिकार रहा है। मैंने सूबे की आवाम के लिए आसानियां पैदा करने के लिए दिन रात एक किया। जो ऐवान फैसला करेगा मैं उसको दिल से कबूल करूंगा। आप 22 को दोबारा इलेक्शन कराएं, तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए काबिल कबूल है। अगर 17 को अवाम फैसला करते हैं जिसके हक में फाबिया, उसको अपना जो है वो कायदे ऐवान मुंतखब होना चाहिए। काबीना ना होने के बावजूद गंदम को हमने पंजाब की आवाम के लिए अपने किसानों से खरीद कर बफर स्टॉक पूरे किए। लोगों ने कहा कि आप इतना बड़ा फैसला 200 अरब की सब्सिडी करने जा रहे हैं, तो ये ना कीजिए, काबीना को आने दे। मैंने कहा नहीं, आवाम परेशान है। हमने 10 किलो के आटे का थैला 160 रुपए सस्ता किया 200 अरब की सब्सिडी देकर। जब तक हूँ सूबे की आवाम की खिदमत करूंगा, ये मेरा वादा है सूबे की आवाम। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा फैसला आया है। जो चीजें हम चाहते थे वो मानी गई हैं। पंजाब असेंबली का इजलास रूल्स के मुताबिक होगा।
बड़ा ही अच्छा फैसला हुआ है इंसाफ के हवाले से भी, और जो चीज़ें हम चाहते थे अल्लाह ताला के फजल व करम से वो बिल्कुल आज मानी भी गई हैं, और वो फैसले में भी, और ख़ुद चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये बड़ा अच्छा इज्तिमाई फैसला हुआ है। इतनी देर का क्राइसिस चल रहा है कई माह से पंजाब के अंदर, वो आज सेटल हुआ है। अब तय चीज़ें जो हुई हैं ना, उसमें ये है कोई ये पुलिस और विक्टिमाइजेशन का अमल नहीं होगा, और बिल्कुल रूल्स के मुताबिक चला जाएगा, और हमारी उसमें मुशावरत भी होगी और सारा रूल्स के मुताबिक होगा। मैंने कहा जी ये हमजा साहब से पूछ लें, मैं इनके प्रोडक्शन के आर्डर भी करता रहा जब ये जेल जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की 5 मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की डिक्लेरेशन के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खवातीन और अकलियती नशिस्तों पर पीटीआई की तरजीही फहरिस्तों के मुताबिक उम्मीदवारों को लेटर जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने तहरीक इंसाफ की 3 खवातीन और 2 अकलियती नशिस्तों के उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने खवातीन की नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ की तरजीही उम्मीदवार बतूल जंजुआ, सायरा रजा और फौजिया अब्बास, जबकि अकलियती नशिस्तों पर हकूक रफीक और सैमुअल याकूब को कार्रवाई का हिस्सा बनाने के लिए रिटर्निंग अफसरान के रूबरू पेश होने की हिदायत की। उम्मीदवारों की जानिब से फराहम की गई तफसीलात की जाँच पड़ताल के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से 5 नशिस्तों का डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा। तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसा करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान रावलपिंडी से रैली की सूरत में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। परेड ग्राउंड में जलसे के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। इमरान खान ने इंतजामात का जायजा लेने के लिए जलसागाह का दौरा किया। पीटीआई कायदीन ने भी जलसागाह का जायजा लिया। बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारी जिम्मेदारी है। पिछले दौरे हुकूमत में प्लांट्स की मुरम्मत नहीं करवाई गई, हमने मुरम्मत का काम करके प्लांट्स को दोबारा चलाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग पर काबू पाने के हवाले से इजलास में गुफ्तगू करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि वो दिन दूर नहीं जब लोड शेडिंग में कमी आएगी। उन्होंने कहा है कि आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। मेरी आदत नहीं कि मैं पिछली हुकूमतों का मैं जिक्र करता रहूं। बिजली के प्लांट्स थे, वक्त के ऊपर उनकी मुरम्मत नहीं कराई और वो बंद पड़े थे। उन प्लांट्स को इन चंद महीनों में हमारी हुकूमत ने पूरी तनदेही से उनको रिपेयर करवा के उनको चालू करवाया। पिछली हुकूमत को जब अल्लाह ताला ने एक मौका अदा किया था कि वो सस्ती तरीन गैस वो खरीदती, उसने अपनी मुजरमाना गफलत की बना पर जब गैस $3 या $4 पर स्पॉट मार्केट में मिल रही थी, वो उन्होंने सौदे नहीं किए। इसके लिए हम अब दिन रात बैठे हैं, चाहे वो कोयला है चाहे वो गैस है, उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इंसानी हद तक इसीलिए बैठे हैं कि सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह लोड शेडिंग के ऊपर काबू पाएं। आलमी मंडियों में जो तेल और गैस की कीमतें वो शायद पिछली दिहाइयों में बुलंद तरीन सतह पे हैं। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का पिछले साल की निस्बत 33% ज़ायद टैक्स वसूली का दावा। वजीर खजाना ने कहा कि हमने IMF से रियायत लेकर कम टैक्सेस लगाए हैं। IMF से मुआहदा जल्द हो जाएगा। मामलात फाइनल हो चुके हैं, ताहम कुछ चीजों पर वजाहत मांगी गई है। महंगाई में इजाफा पेट्रोल और डीजल के बाइस हुआ है। इस्लामाबाद में वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल और चेयरमैन FBR ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि FBR ने तारीखी टैक्स वसूली करते हुए जून में 765 अरब रुपए के टैक्स जमा करने का रिकॉर्ड कायम किया और उन्होंने चौथी छमाही में हुकूमत संभाल कर 1741 अरब रुपए वसूल किए। पिछले महीने अल्लाह ताला की मेहरबानी से, FBR के लोगों की मेहनत से और टैक्स पेयर्स की मेहरबानी से हमने एक साथ 763 अरब रुपए जमा किए हैं। चौथे क्वार्टर के अंदर 1741 अरब रुपए जमा किए हैं हमने। चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने कहा कि आखिरी छमाही में सबसे ज्यादा मुश्किल थी। हमने हर मुमकिन कोशिश करके चैलेंज कबूल किया और एनफोर्समेंट और रिकवरी पर खुसूसी तवज्जो दी। एनफोर्समेंट के इक़दामात से 250 अरब रुपए इकट्ठे किए। वो स्ट्रेटेजी हमारी एनफोर्समेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की थी, जिसमें मेनली जो हमारी करंट और एरियर डिमांड की रिकवरी है उस पे हमने जोर दिया और उस मद में हमने, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि तकरीबन कोई 250 अरब रुपया
हमने जो इन्फोर्समेंट मेजर्स है उससे हमने जमा किया है। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक पहली बार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाया। महंगाई में इजाफा पेट्रोल और डीजल के बायस हुआ। मार्च में कीमतें मुंजमद करने से मईशत पर असरात हुए। पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंची हैं। पाकिस्तान के इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल मुल्क में अफरात ज़र की शरह में इजाफा हुआ। 2022 में महंगाई की शरह 12.15% रही। शहरों में महंगाई की शरह 11.82% रही। देही इलाकों में ये शरह 12.65% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक जून में महंगाई में इजाफे की शरह 21.3% रही। गुज़िश्ता माह आलू, अंडे, दाल, चावल, आटा, तेल, टमाटर, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई। मुल्की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को सऊदी आला सिविल अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद दी। भारतीय नाज़िम उल मुल्क की दफ्तर खारजा तलबी भारत की जानिब से ईरान में पाकिस्तान के सफारती मिशन के ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। तुर्की, मिस्र, अक़वाम मुत्तहिदा, न्यूयॉर्क और कौमी नशरियाती इदारे रेडियो पाकिस्तान जियो ब्लॉकिंग और सेंसरशिप कवानीन को फाल कर दिए गए। भारतीय नाज़िम उल मुल्क को बताया गया कि भारतीय इक़दामात में बैनुल अक़वामी मयारात, जिम्मेदारियों, उसूलों के खिलाफ हैं। दफ्तर खारजा हुकाम के भारतीय हुकूमत पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान के सफारती मिशन के ट्विटर अकाउंट के ब्लॉक करने से मुतालिक अपने इक़दामात को फौरी तौर पर वापस ले और अक़वाम मुत्तहिदा के कायम करदा बैनुल अक़वामी उसूलों और मयारात की पासदारी यकीनी बनाए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने सफारतकारी को नया रंग दे दिया। दुनिया भर के सफीरों को भी आमों के तोहफे भिजवा दिए। कहते हैं कि दुनिया भर में पैदा होने वाले आमों की पाकिस्तानी आमों के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद में फलों के बादशाह यानी आमों का फेस्टिवल मनाया गया। इस्लामाबाद में तैनात गैर मुल्की सफीरों, आम बरामद कुनंदान और शहरियों ने फेस्टिवल में शिरकत की। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया भर में पैदा होने वाले आमों की पाकिस्तान आमों के मुकाबले में हैसियत नहीं है। All mangoes across the world did not indeed taste like Pakistani mangoes. In fact, they're a poor imitation of the mango. I don't even know whether they should be allowed to be called mangoes. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आमों की लातादाद वैरायटी पैदा होती है, जिसमें चौंसा, अनवर राटोल, सिंदड़ी, मालदा, लंगरा, फिजरी, समर बहिश्त, सफेद चौंसा वगैरह शामिल हैं। मैंगो फेस्टिवल में 21 मुख्तलिफ इकसाम के आम रखे गए थे। Ensure that all peoples anywhere across the globe can taste the Sindri, the Chonsa, the Lal Badshah, the Anwar Rathod that is grown here in Pakistan, in Sindh and in Punjab. Honestly speaking, it is not just the mango. इस्लामाबाद में तैनात गैर मुल्की सफीरों ने तकरीब में खुसूसी दिलचस्पी दिखाई। बरतानवी हाई कमीशन, जनूबी कोरिया, चेक रिपब्लिक, चीन, तेलिया और दीगर ममालिक के सफारतकार खास तौर पर फेस्टिवल में शरीक हुए। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए आज के साथ।